આપણા સમાજમાં આપણે હિન્દુ છીએ એ ભાવના ખરેખર હવે જાગૃત કરવાની જરૂર છે. અત્યાર સુધી આપણે કહેવાથી હિન્દુ છીએ, પણ અમુક પ્રકારના કર્મો, અમુક વસ્તુઓ જે કંઈ પણ આપણે જે યોગ્ય સમાજ પ્રત્યે જે કંઈ પણ થવું જોઈએ એ કરી શકતા નથી. એટલા માટે આજે છેક દ્વારકાથી અહીંયા બાપુશ્રી પધાર્યા છે અને બાપુની હાજરીમાં આપણે તો શું બોલી શકીએ, બહુ જાજુ ન કહેતા આ સરસ મજાનું બાપુ આજે જે કંઈ પણ આ સરસ આયોજન કર્યું છે અને એમાં આપણે અંદર આપણી ભાવના એ હિન્દુ તરીકેની ભાવના આપણને જાગૃત કરે એવા આશીર્વાદ આપે એવા ગુરુજીના ચરણોમાં પ્રણામ. મહામંડલેશ્વર કૃષ્ણાનંદ બાપુ ચરણોમાં કોટી વંદન. બાપુને આજે મારે બીજી વખત મળવાનું થયું. 8 કે 10 વર્ષ પહેલા બાપુને હરિદ્વારમાં મળ્યો હતો અને આશ્રમ અને તે રોકાણો મને બરાબર યાદ છે. 2 કે 3 દિવસ રોકાણો. બાપુ આમ તો ઘણા સમયથી આ હિન્દુ ધર્મ બચાવવા માટે પ્રયત્ન કરે છે અને આજે આપણી રાજકોટની જે પાવન ભૂમિ છે એમાં ખાસ તો પુરુષા સ્કૂલમાં અત્યારે બધાને આશીર્વાદ આપવા માટે હિન્દુ જાગરણ મંચનો ઝંડો લઈને આવ્યા છે. તો બાપુને આપણે આશીર્વાદ મેળવશું અને વધારે અત્યારે સમય નથી બગાડતો. બાપુ જે આશીર્વાદ આપે એ આપણે લેશું. ફરીથી બાપુના ચરણોમાં કોટી થેન્ક યુ. અખંડ ભારત હિન્દુ જાગરણ મંચ નિમિત્તે આપણે જે ટૂંક સમયમાં રેલીનું આયોજન કરશું એ રેલીની શરૂઆત આપણે દ્વારકાથી શરૂ થશે અને પોરબંદરમાં પૂરી થશે. અત્યારે શરૂઆતમાં રેલી આપણે ગુજરાત પૂરતી જ આપણે રાખેલી છે. એમાં ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રનો જ ભાગ વધારે છે, કારણ કે આવનારા સમયમાં લોકસભાની ચૂંટણી ઘણું બધું આવવાનું છે. એટલે અમુક સિક્યોરિટીના કારણોસર આપણે ભારતભરમાં રેલી કરી શકીએ એમ નથી ટૂંક સમયમાં, પણ નજીકના ભવિષ્યમાં આ રેલીનું આયોજન આખા ભારતભરમાં થવાનું છે. એ ખાસ ધ્યાન રાખજો. આપણે બધા સાથે હશું તો જ આ રેલી સફળ થશે. જેવી રીતે આપણે સાવેણી હોય છે જે કચરો વારવા માટે આપણે ઉપયોગી લેતા હોય છે, પણ જ્યારે સાવેણી છૂટી પડી જાય ત્યારે ખુદ કચરો બની જાય છે. આમાં એક વાક્યમાં બધું આવી જશે. એટલે જેમ બને એમ આપણે એકતા હિન્દુ મંચની જળવાઈ રહે એ આપણી પ્રાથમિકતા હોવી જોઈએ. અત્યારે બી છે અને ભવિષ્યમાં બી આ રહેવી જોઈએ. આનાથી વિશેષ બીજું કંઈ કહેવાનું નથી. સૌ જ્યારે આ રાજકોટમાં આપણી રેલી હશે ત્યારે આપણા જે જયપુર ગ્રુપ છે એમાં જાણ કરવામાં આવશે, કારણ કે અગાઉથી થોડી પરમિશન પોલીસની ને બધું થોડું પ્રોટેક્શન રાખીને જે રેલી થશે એ રેલી જ્યારે થશે એ અગાઉથી જાણ કરવામાં આવશે. ત્યારે અહીંયા જેટલા સભ્યો છે એ તદુપરાંત તમારા સગા સંબંધીઓ બધાએ આવી રેલી જ્યારે રાજકોટમાંથી નીકળે ત્યારે એનું સફળ આયોજન કરવાનું છે. જેમ બને એમ જેટલા જ્યાદા લોકો હશે એમ વધારે બધામાં જાગૃતતા, એકતા બધું આવવાનું છે. એટલે ખાસ એ બાબતનું બધા ખાસ ધ્યાન રાખે કે જ્યારે રાજકોટમાંથી નીકળે ત્યારે બધા આપણે એને સફળતાપૂર્વક એ રેલીનું આયોજન પૂરું કરીએ. હવે આપણા ગુરુજી થોડું હિન્દુ વિશે આપણને સહજ નામ તો થોડું આપશે. जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, 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 जय श्री राम. हम सब श्री राम की संतान है और हमारे धर्म पर जब कोई भी आता है राम भैया समय गलत आता है तभी ये सब लोग जानते, वरना कोई नहीं आते. समझे भाई? तो कहने का तात्पर्य ये है, एक तो हमें यहाँ राणा भाई ने स्कूल में आए और राणा भाई राजकोट की पावन भूमि में जो सबके लिए हमारा और अखंड जागरण हिंदू सनातन मंच हमारा है.
हम लोग इसके लिए सबकी एक सहायता चाहते हैं, माताएं, बहनें और भाई। विचार करें कि अगर हम आज एक नहीं होंगे तो दोबारा होना बहुत मुश्किल है। इसलिए माता, बहन और भाई और हमारे जो भक्त हैं, हमारा कहना केवल इतना ही है कि भाई आप जाग जाओ। और नहीं जागोगे तो फिर एक के भरोसे पीछे रह जाता है। सब जागेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। जाग उठो तुम धर्म के वीरों, जो कसरत में सोते हो, बिना विचारे काम किए मूड पकड़ के रोते हो। समय चला जाएगा, बात रह जाएगी, फिर रोने का समय आता है। समय जाने के बाद और कोई भी गुरु हो, हमें सबकी जरूरत है। चाहे वो RSS हो, चाहे वो बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो हमारा शिवसेना हो, सबकी जरूरत हम लोगों को पड़ेगी। और सब में हमारी जब ही हम सब मिलेंगे, अगर एक एक होकर के हम लगातार भागेंगे तो समझ लेना कि आपने पहले भी अपना देश इस तरह खोया था। और एक बार हमारे देश में ऐसा शासन आया था कि हमको बहुत बुरी तरह, अच्छी तरह वर्णन नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे समय आए इस भारत का, और गुलामी भोगते भोगते बहुत समय चला गया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई अब तो जाग उठो, अब समय है। एक के पीछे एक अगर बैठे रहोगे कि आज इस पर हो रहा है तो हमारा क्या जा रहा है? कल कहेंगे कि भाई इसके पीछे हो रहा, वो कहेंगे मेरे पाया जब तू क्या गई तो इसी तरह हमारे देश में जो पहले राज्य फैले थे और मुगल इस देश को बड़े थे, तो कैसे बड़े थे? छोटे छोटे राज्यों को अपने कब्जे किया और फिर बड़े बड़े राज्यों पर मार कर उन्होंने देश पे राज किया, क्योंकि उनकी सेना उनके अंदर चली जाती है और अब वो छोटे छोटे राजा भी उनके गुलाम हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अब समय है। अगर अभी भी हम कहाँ चले जाते, वो नरेंद्र मोदी को दुआ जाए जो अभी कभी के लिए यहाँ पर समझे भाई, उसने बहुत कुछ संभाला है। तो मैं कहता हूँ कि एक एक होता है और जब उसके पीछे अनेक होते हैं तो दुनिया फैल जाती है। एक बार कहा था कि भाई माथा काटने के लिए नहीं, केवल दिखा दो, काटो मत। काटा नहीं जाता, खाली दिखा दो, देखने से ही काम हो जाता है। इसलिए जितनी जनता जुड़ेगी उतनी जनता के लिए अच्छा होगा। अब हमारा समय आया है और समय पर हम नहीं जागेंगे तो क्या होगा? फिर तो कोई छत्रपति शिवाजी होगा जो पेड़ को उठ जाएगा इस देश को घुमाकर, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने पहले भी कहा है आप लोगों को कि जाग उठो तुम धर्म के वीरों, जो गफलत में सोते हो, बिना विचारे काम किए फिर ढूंढ पकड़ के और रोकते हो। डरवाने का समय आता है, कुछ नहीं होता, समय चला जाता है और बात रह जाती है। इसलिए हमारे देश को बचाया राणा प्रताप हुआ, उसने इस देश को बचाया। फिर जब रह गए तो छत्रपति शिवाजी ने इतनी मेहनत की कि दिल्ली तक राज उसने बुलाया और सबको वापिस भेज दिया जहां से जो आए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज भी हम लोगों को जागने का समय है। आप देख रहे हो अभी उदयपुर से हरियाणा में अपनी रैली गई थी, क्या हालत हुई सबने देखी होगी मोबाइल पर, हुई कि नहीं? तो अपने जागे नहीं तब हुई ना, जागते तो नहीं होती। सही कह रहा हूं मैं, लेकिन जागते तो ये हालत नहीं आती। हम सोते रहे, वो हमारी हालत बिगड़ती है बार बार। कहां पर? तो हमें समय जागना है और समय एक हाथ मिलाकर एक जगह हिंदू के लिए हम ये मंच बनाया है, अखंड सनातन हिंदू जागरण मंच। याद रखें, ये हिंदू जाग जाएंगे तो इनके जाग उठो भाई। अपनी जागोगे तो फिर
भावना भी निकल जाएगा और निकलने के बाद फिर बड़ा मुश्किल होता है कि हमें जब छोटा रहता है तो सोचते हैं हाँ नाना को फोटो से मटी जाएगा, लेकिन जब वो बड़ा घाव कर लेता है तो फिर वो कैंसर या नासूर बनकर हमारे प्राण ले लेता है। तो हम सोचे कि उस प्राण लेने से पहले ये छोटा है उसी को काट डालो। जो छोटा समय आया है जैसा आ रहा है उस फोड़ा को वहीं तो ऑपरेशन कर डालो, नहीं तो दुखदाई पड़ेगा। अगर उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो तुम्हारे लिए नासूर बनेगा, कैंसर बनेगा और तुम सब लोगों को बहुत बड़ा दुखदाई हो सकता है। इसलिए आज हम सब एक मिले, ये ना कहें कि वो उसकी सेना है, वो उसकी सेना है, वो उसकी सेना। अरे सब हमारी सेना, हम हिंदू है। हमें गर्व होना चाहिए कि हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदू कहने का हमें गर्व है और गर्व से बोलना चाहिए सबको कि हम हिंदू हैं। अगर आदमी ये बोलो छत्रपति शिवाजी कहता हम इस देश में रहकर भी मैं गुलामी नहीं करूंगा, और उसने की नहीं, सिर नहीं झुकाया। उसके बाप ने भी कहा जब नहीं झुकाया उसने। तो हमें इस देश के अंदर ऐसा बढ़ के रहना है कि आज हमारा देश अगर सोता ही रह गया तो फिर जागने का नासूर पड़ेगा, कैंसर पड़ेगा, फिर बड़ा मुश्किल होगा भाई। तो हमें अपने सबने मेरा कहना इतना ही है कि जो अगर हमारे छोटे बड़े भाई बंद और बड़े बड़े लोग भी बैठे हुए हैं, एक होकर के एकजुट में काम करना चाहिए। किसी की ताकत में एक मुट्ठी सबको भयंकर हो जाती है, बनी हुई मुट्ठी सबको भयंकर होती है, खुली हुई खाक हो जाती है, आप जानते हैं। और हम खुली खुली नहीं, हम लोग खुले उसमें खराब हमारी तो बोले उसमें ही तो हो रहा है, जब हम आएगा देखा जाएगा, जब उसमें हो रहा है इसलिए हम पाछे रह गए हैं। अब तो हमें समय आगे जाना चाहिए, समय आ गया है, क्योंकि बिगड़े पीछे फिर मिले नहीं। समय आवनी जानी अमर नहीं है कोई दुनिया में, एक रहती अमर कहानी, एक बार वाला हमेशा मिल रह जाएगा और इंसान रहने वाला नहीं है। मरना जीना तो इंसान के पीछे लगा हुआ है, एक दिन तो जाना ही है, सबको याद रहता है एक दिन जाना है, एक दिन जाना है। इतने बच्चे को भी दो बालक लड़ रहे हो आपस में छोटे छोटे, और वो जब जोर से लड़ रहे हो छुड़ाना तो बच्चे क्या कहेंगे वो भी देखना चाहिए हमें। वो जब छुड़ाएंगे तो वो कहेंगे एक दिन तो मर जाना, आज ही मरने दे। तो उस बालक को भी ये पता है कि हमें एक दिन मर जाना है और वो दिन हमें याद नहीं है, इसलिए कहा है मरा मरा सब कहे और मरना जाने न कोई, ऐसे घर को मर चलो बंदे जहां से मरना ही न हो। अरे मरा तो सारी दुनिया कहती है, लेकिन मरने से पहले एक मरना सीखो और चलने से पहले प्यारे हो एक जीना सीखो। तुम ये भारत में जन्मे हो, ये भारत भूमि ऐसी पावन भूमि है कि इसमें एक से वीर पैदा हुआ है। जिस भारत में आए कृष्ण आए तो भारत में आए और भी उन्होंने अपनी छवि छोड़कर चले गए, जाना तो पड़ेगा इस सबको, धरती का नियम है, जो आया है वो जाएगा। राजा रंग फकीर, वो है राजा हो रंग को फकीर हो कोई भी हो, जाना पड़ेगा जरूर बंदे। जब आएगा बुलावा तेरे नाम का, ये नखरा बेटे में बन जाएगा, ये दम भी तेरा लंगर सब जम जाएगा और ढल जाएगा जरूर बंदे। एक दिन को जाना पड़ेगा जरूर बंदे, जब आएगा बुलावा तेरे नाम का। ये तो एक दिन आएगा जब मिट्टी के माँ मिट्टी मिर्जा पवन पवन के माँ और चंदन के माँ चंदन मिल जाएगा, खेल जाएगा फूल चंदन के माँ, मट्टी मट्टी में मिल जाए, वायु वायु में मिल जाए, पृथ्वी पृथ्वी मिल जाए, आकाश आकाश में मिल जाए। पांच तत्व बने हुए पिंजरा पांचों रहा क्या, ये तो पांच तत्व बना पिंजरा लेकर पुजारी बाहर गया, पुरजी ढाकी की लहू छड़ के पंछी में फंसा गया। यहाँ कहना हमें नहीं है,
और हमें कायिक बनना चाहिए। और एक कायिक हमें जो धरती पर आए हैं तो हमें इस जीवन का लाभ उठाना चाहिए, नहीं तो समय से सोच के चले जाते तो जान मेरी प्रिय व्यक्ति थी जो लड़ के मर गए धरती पर, इस भूमि और धरती के लिए, एक भारत भूमि के लिए, वो भी वीर थे और तब भी वही इंसान उसी मिट्टी के बने हुए हो। मैं तो कहता हूँ कि आज तुम भी वही बनो जो हमारे आगे बढ़ के गए हैं। जैसे छत्रपति शिवाजी था, विचार करो उस दिन जीजाबाई ने उसको ऐसी शिक्षा दी थी कि राणा प्रताप को तो केवल एक ही नीति दी थी। उसकी माँ ने ये कहा निहत्थे पर वार नहीं करना, वो नहीं करता था, शस्त्र दे देता था, वो निहत्थे पर वार नहीं किया उसने। और लोग उन्होंने जो हाथ शस्त्र के थे उसे नहीं करता था, वो सब क्षत्रिय था। और मेरे प्यारे जो कोई खड़ा हो या भाग रहा हो उसे नहीं मारता था, निहत्था खड़ा उसे नहीं मारता था। तो मेरे प्यारे हो, हम उस भूमि के जन्मे हुए हैं जो हजारों को एक ही काफी हो जाता था। आज हम हजारों होकर उसका कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो तो एक ही था। छत्रपति शिवाजी की मां ने दोनों नीति सिखाई उसको, जीजाबाई ने, कि बेटे एक काम करना, हाँ, कि कहीं जहां राम की नीति की जरूरत पड़े वहां राम की नीति मत करना, और जब बहुत ज्यादा जरूरत पड़े तो कृष्ण की नीति भी याद रखना, क्योंकि वो सबको निकाल देता था जो उसको भटकते थे। इसलिए तो दोनों पर चलना। तो छत्रपति शिवाजी बादशाह को छोड़ना नहीं था, उसे पता था कि जब छोड़ने के बाद ये नासूर बनेगा, यही कैंसर के सामने आएगा, इसलिए वो मिटा देता था। और उसने छत्रपति शिवाजी ने इसलिए दिल्ली तक पूरा एक छत्र राज कर दिया। तो उसी भूमि के आप लोग हो और उन्हीं लोगों ने आज ऐसा करा है, तो हम लोग आज इस पर आए हैं, तो हमें खाली एक मिल के तो रहना चाहिए, और एक मिलों के आगे मिलने की जरूरत है, किसी को मारने की जरूरत नहीं है। हमारी धर्म नहीं सारी दुनिया के लिए क्रांति हो जाएगी। मारने से पहले तू जागो तो खड़े, मारने वाला भी खुद मर जाएगा, उसे मारना नहीं पड़ता। अगर उसे मारने से पहले ऐसे ही मर जाएगा बिगर मारे। इसलिए हम एक जगह समझ जाए, एक बन जाए, एकता अनेकता हमारे लिए, हमारे भारत के लिए हमें अच्छी होगी। और जो आप नहीं हुए तो समय बहुत टाइम चला जाएगा, चला जाने के बाद फिर हम जागते रह जाएंगे, वरना जब किसकी गुलामी करने का समय आ जाएगा। हम लोग बार बार नहीं बोलते और न बार बार बोलते। अब जो हम रेलवे निकालेंगे वो अखिल गुजरात के अंदर होगी, फिर यह पूरे भारत के अंदर भी होगी। इसलिए अखंड जागरण सनातन हिंदू जो हमने बनाया है, वह हमारे सभी लोग मिलकर सब हम एक हैं। ऐसा मत समझो कि हमारे घर के अलग हो गए तब तो हम ही नहीं रहेंगे। जब एक है तो हर चीज करेंगे आपसे, और जब अनेक हो गए वो होगा है वो होगा, सब दुखी रहोगे। जाग उठो, अब तो जागो, जागो मेरे प्यारे, फिर समय चला जाएगा, फिर पाछे पछताओगे, रोने से कुछ मिलेगा नहीं, रोने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर हिंदू सनातन जागरण मंच आप लोगों को यही प्रेरणा देता है कि आप सब जाग उठो। मैं देख सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं पड़ा, मैं तो कहीं नहीं जा सकता हूँ, पर तुम्हें हमें बचाने के लिए फिर कौन आएगा? समय तो हम भी आएगा। क्यों? जिस भूमि का अन्न खाते हैं वो साधु की हो। झांसी वाली रानी के साथ हमारे पास से साधु कटे, अंग्रेजों के साथ लड़के लाखों साधु आए के खड़ा खाली हो गया था और वहां लड़ते लड़ते खत्म हो गया था, क्योंकि हम इस भारत का खाते हैं। और जब इस भारत में कोई नहीं खराब आएगी तो हम लोग पीछे नहीं रहेंगे, हम भी आगे आ जाएंगे, हमारे नागा भी आगे आ जाएंगे। हमने उनको शिक्षण यही दिया है कि वो मौत और कानून को नहीं जानते,
वो दो चीज को नहीं जानते, मौत को भी नहीं और कानून को भी नहीं। वो सबका उल्लंघन करके तोड़ जाते हैं, फिर मौत आए या नहीं। इसलिए आप सब लोग जागेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, और हम भी आप लोगों के साथ हैं, और आप लोगों से आगे रहेंगे, डरो मत, पीछे नहीं रहेंगे, बेफिक्र रहो, आगे रहेंगे, जय होगा। लोग जागने वाले आगे जागो, हम भी जाग रहे हैं। तो हम तो पीछे से जागते हैं लेकिन आगे आ जाते हैं, जागते हैं देर में और फिर भाग के आगे आते हैं, क्योंकि सिर हम काटते नहीं देते हैं, सामने काट लेते हैं। ये याद रखो कि हमारे शब्दों ने बहुत बलिदान भी दिया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसलिए हमारे देश में जब आपत्ति आती है तो हम लोग पीछे नहीं रहते, क्योंकि हम भी देसी बात का नहीं करते, हर देश को हिलाते हैं। मेरे प्यारे हो, आज देख लो कि हमारे शब्दों ने, वो कहीं भी गए हमारे विद्यार्थी निकल कर जाते हैं, हमारे शब्द निकल कर जाते हैं, वो देश विदेश को हिला देते हैं सारे को, हजारों आदमी इकट्ठा कर देते हैं, हर देश में जाकर के लाखों आदमी मेहनत करता है। पर लंदन, इंग्लैंड, रूस, जापान, जर्मन, थाईलैंड, स्विट्जरलैंड, बर्मा, दुबई, कोई आई में हमारे देश में 1000 आदमी भेड़ा मेरा बोलो, ऐसा कोई हुआ? और हमारे देश का विद्यार्थी जब निकलता है और हमारे देश का महात्मा निकलता है तो मेरे प्यारे याद रखो कि वो देश विदेश में करोड़ों हजारों आदमी भेड़ा कर देता है। उसकी ताकत कितनी है? वो ताकत तो हमारे देश की ताकत है, संस्कृति है हमारी, हमें उसे बचा के रखना चाहिए। अगर हमारी शान, हमारी संस्कृति हमारे से चली जाएगी तो हमारे पास रहेगा क्या? कुछ नहीं रहेगा। इसलिए जागो और कुछ करो। मेरा कहना इतना ही है कि हर जीव को जागना चाहिए। होने वाली पीढ़ी आगे उसको तकलीफ पड़ेगी, आज ना पड़े तो काल का तो सोचो। आज तो चला गया, कल क्या होगा? और जो समय आज है वो कल नहीं, जो कल है वो परसों नहीं। समय आने जाने वाला है, वो रुकने वाला नहीं है। समय नहीं रुकता, समय परिवर्तन होता रहता है, वो रुकेगा नहीं। और हमें जाग रहना चाहिए। और मैंने पहले भी कहा है कि जाग उठो, धर्म के वीरों क्यों मतलब में सोते हो, बिना विचारे काम किए फिर दूध पकड़ के और रोते हो। फिर रोने से कुछ नहीं होगा, फिर तो रोना ही रह जाएगा, बचने का बहुत कम समय होगा अपने पास। इसलिए अब मैं भी इन शब्दों के साथ अपनी बॉडी को विश्राम देने की तैयारी करता हूँ, क्योंकि अब आप लोगों शब्द को थोड़े इशारे में ज़्यादा समझ जाना चाहिए। कम जो बोलता है वो बहुत कुछ समझ जाना चाहिए। इशारा तो खाली किनारा पकड़ा दो, आदमी समझ जाता है। और बाकी जात पात हमारे पर नहीं है, क्योंकि एक ही उंगली उठाता हूँ मैं, बस एक को छोड़कर बाकी सब एक हो जाओ। मेरा कहना केवल इतना ही है, एक ही उंगली, और एक ही काफी होती है। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठा लिया था एक उंगली पर, और उसके नीचे पूरी मथुरा को, गोकुल को बचाया था उसने। तो मेरे प्यारे हो, अभी एक ही उंगली उठाता हूं और जाग जाओ, बाकी सब एक हो जाओ। उस पर जाकर के आप कभी कुछ करोगे। राणा प्रताप की सेना कभी तो उन्होंने लोहारों को अपना बना लिया था और उनके घर खाना खाने चले गया तुरंत। उसकी सेना को अपने हिस्से से लगा दिया। राणा प्रताप की सेना कम थी, लेकिन उन्होंने भीमों को अपने हिस्से से लगा लिया और उनके साथ वो एक हो गया, और वो सब उसके साथ मिल गए और उन्हें सबकी सहायता लेकर बहुत आगे चले गए। ऐसे ही हम सब एक होकर और एक मंच पर बैठकर चलेंगे तो हम बहुत कुछ आगे बढ़ेंगे। नहीं तो एकता नहीं होगी तो सब अलग अलग फट करके वही देंगे जो थे
से पहले, समझे भाई? तो अब हम ये कहते हैं कि अब हम किसी की गुलामी नहीं भोगेंगे। बहुत दिन हो गए अच्छे भाई, बड़ी होते, क्योंकि मैं देखता आ रहा हूँ इस धरती पर, मैं इस भारत, पूरा भारत घूमा हूँ, कोई जगह मैंने खाली नहीं छोड़ी इस बार। फिर मैं हिमालय में 50 वर्ष रहा हूँ, तो 60 वर्ष के ऊपर मुझे गुजरात में हो गए हैं। मेरे प्यारे अभी तक जी रहा हूँ, तो अब अपने मर भी जाए तो कोई परवाह नहीं, भगवान की अति कृपा है। बहुत दिन जिलाया उसने हमको, और वो आज भी हमारे साथ है कि हमें जिलाए रखेगा, अति कृपा है उसकी। इसलिए अब नहीं जागे तो फिर जागने का अवसर मिलना बहुत मुश्किल होगा मेरे प्यारे हो। जागो जागो, इसलिए हमने मंच बनाया सबके लिए, और सब हिंदू जाग जाए। माताएं बहनें जीजाबाई की तरह तलवार लेके तैयार खड़ी हो जाए। लड़ती थी ना एकली, जब समय आता था तो छत्रपति शिवाजी के साथ ही युद्ध करने के लिए जीजाबाई खड़ी हो जाती थी। लक्ष्मीबाई हमारे देश में हुई, झांसी वाली रानी, जब वो अकेली लड़ती थी फिर भी, और वो तो एक जान को नहीं, दो जान बचाकर लड़ती थी। मेरे प्यारे हो, वो हमारी माताएं थी, वो हमारे देश की महिलाएं थी, जिन्होंने इस देश को आगे ले आई। और उन माताओं ने जो शिक्षा दी, उन पुत्रों ने वो काम करके दिखाया कि हम आज भी हैरान हैं। वो हम लोग नहीं कर सकते, ऐसा लग रहा है लोगों को। अरे हम भी कर सकते हैं, क्योंकि हम भी उनकी संतान हैं, और इस भारत की संतान है। ये मट्टी हमारी है, भूमि हमारी है, इस पर दूसरा कोई राज नहीं करना चाहिए। इसलिए जाग जाओ, अब समय आया है। मैं इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जय श्री हम राम। उस राम की संतान है, और हमें उसकी आन है कि हमारी धरती पर कुछ नहीं आना चाहिए।